Good morning, student. I am Rajendra Simoli, your maths teacher from the Gyan Manjari Vidyapith, Moa. I welcome you everyone for this online classes that is running from the last since 2-3 months. But today, just we have to going for our new portions. I am talking about that whatever the portions we have to started yesterday. That is for the unit number 2, that is your chapter number 2. And recently you have to complete your unit test. So be careful about all the video lectures and you have to attend compulsory for these kinds of the things because we have to take much more things inside the 30 minutes lectures. So without miss, you have to follow these kinds of the link regularly. Is it okay? So today we are just going on that before using this unit number 2 in chapter number 2. I would like to say something about the whatever the previous doubts you have. So yesterday some of the students having the doubts in 2.1 exercise 2.1 question number 5. Sir, how can we solve this question number 5? Here, so first I am starting this particular points and then after we go for the zeros of the polynomials. Is it okay? So first of things I am using that how can we solve out this question number 5 in 2.1. So those having this kinds of the doubts, again you more focused on these things. So here in this question number 5 it's suggesting that question number 5 is related with the classify the following as linear, quadratic और cubic polynomials. ये यदि linear है, quadratic है या cubic polynomials है, आपको ये बताना है, सिर्फ classify करना है, देख मतलब आपको ये polynomials देखना है तो कैसे देख सकते हैं? ये सब types किसके हैं? linear हो या quadratic हो या cubic हो, ये किसके ऊपर हमने कल उसको divide किया था? डिग्री के ऊपर. मतलब आपको गिवन पोलिनोमियल्स में से यही चीज फाइंड करनी है कि किसी की डिग्री 1 है यदि तो इसको हम लीनियर बोलेंगे, यदि किसी की डिग्री 2 है तो इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे. पूरे पोलिनोमियल्स की डिग्री आपको लगती है कि 3 है, वी कैन से दैट इट्स क्यूबिक. तो ये सब चीज है, ये आपको क्लासिफाई करके करना है. क्लियर हो गया? सपोज मैं ऐसा बोल दूं कि यहाँ पे मैंने एक चीज 5x cube minus 2x square plus 3x minus 2. So this is 5x cube minus 2x square plus 3x minus 2. This is a one kind of polynomials. अब ये polynomials हमें बताना है कि किस टाइप का polynomials है. तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे highest power या highest exponent किसकी है या इस polynomials की डिग्री कितनी. तो हम ऐसा बोलेंगे कि इस polynomials की डिग्री 3 है क्योंकि इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर कितना है? 3 है. सो हम बोल सकते हैं कि दिस इज ए वन काइंड ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल. समझ में आ गया? मैंने ऐसा लिखा सिर्फ x, तो ये लीनियर हो गया ना, जिसकी डिग्री 1 है. ऐसा भी बोल सकते हैं. यदि एक टर्म्स के रिलेटेड मैं इसको टाइप्स करना चाहूंगा तो इस पोलिनोमियल्स का नाम क्या रहेगा? मोनोमियल, क्योंकि इट हैविंग ओनली वन टर्म. बट हमें यहाँ पे क्यूबिक बताना है, क्वाड्रेटिक बताना है और लीनियर बताना है, तो हमें ऑब्वियसली उसकी डिग्री के बेस पे बताना है. और डिग्री क्या है? ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. ओके, तो आई होप सो दैट यू ऑल आर अवेयर विद दिस थिंग्स. और जिसको भी डाउट था, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. यदि नहीं हुआ है, यू कैन ऑल्सो आस्क माई पर्सनल नंबर. इज इट ओके? Now we are going on to the today's point is zeros of the polynomials. So before going on that zeros of polynomials, I would like to give some hints regarding that because it's a base for the 10th class. So once you have to understood very well for zeros of polynomials, it will be very helpful for the other years, specifically in 10th. कैसे? कि मैं ऐसा बोल रहा हूं कि p of x, यहाँ पे कोई पोलिनोमियल्स आपको दिया गया है, इसमें कोई भी वैल्यू x की आप रख रहे हैं. यहाँ पे x की वैल्यू मैंने 1 रखी है.
तो 1 वैल्यू रखने से जहां पे भी मुझे x दिख रहा है वहां पे हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि द वैल्यू इज 1। ओके, जैसे 1 रख दिया तो ऑटोमेटिकली इसका जो भी सॉल्यूशन होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 into 5 5 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 into 1 होता है -2, प्लस 3 into 1 यानी 3 -2। So 5 minus 2 plus 3 minus 2. Obviously we can say that 5 plus 3 यानी कितना होता है 8, और 2 minus 2 minus 2 minus 4 होता है, तो 8 minus 4 obviously we get that। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब हमने x is equal to 1 रखा तो इस पोलिनोमियल्स की वैल्यू हुई 4। ऐसे कोई भी x की वैल्यू हम रख सकते हैं। क्या रखे, कुछ भी रखो, 0 रखो, -1 रखो, -2 रखो, -3 रखो। इससे आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप जो भी वैल्यू रख रहे हैं उससे आपके पोलिनोमियल्स की वैल्यू क्या आ रही है। बाद में हम 0 पोलिनोमियल्स की ओर जाएंगे। समझ में आ रहा है? सो दैट्स व्हाई वी आल्सो पुट इट 0 यदि आप रखते हैं तो -2 आता है, क्योंकि 0 हमें पता है कि 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है। तो 0 minus 0 plus 0 -2, तो ऑब्वियसली गेट द -2। तो 0 रखने से -2 आता है। वैसे -1 रखने से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, -1 रखने से क्या होता है, याद वही रखना है जो एक्सपोनेंट होता है उसमें 3 होता है, तो ये साइन कभी चेंज नहीं होगी, मतलब -1 का क्यूब -1 ही होता है, याद रखना। -1 का स्क्वायर +1 होता है, क्योंकि उसके स्क्वायर है। तो एक्सपोनेंट यदि 3, 5, 1, 3, 5, 7 whatever, then it always never change the sign whatever is given here. But if it is using 2, 4, 6 in the exponent, यानी पावर में या एक्सपोनेंट में 2 है, 4 है, 6 है, तो ऑलवेज माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लाइक दैट। माइनस से क्या हो गया, -1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये माइनस यहाँ पे है इसीलिए -2। समझ में आ गया? तो ये चीज मैं आपको समझाने वाला था कि ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स का बेस है। तो ये चीज हमें पहले ये प्रैक्टिस कर लेनी है कि कितनी सारी वैल्यू हम रखें तो इससे क्या फायदा। ओके, सो जस्ट चेक इट आउट दिस थिंग्स thoroughly, and then after we have to go for the next example also. Okay. So let us move on these things. So whatever we discussed, just we have implemented here. So suppose here given one polynomial 5x square minus 3x plus 7. यदि हम इसको x is equal to 1 की पोजीशन, यहाँ पे x is equal to 1 रख के उसकी वैल्यू फाइंड करना चाहे तो कैसे करेंगे। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, p of x is equal to 5x square minus 3x plus 7। अब कितना रखना है, x is equal to 1 रखना है। So we put the value x is equal to 1। तो x की जगह अब हम क्या रख रहे हैं, 1। 5 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 देन 7। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, 1 into 5 यानी 5 माइनस 3 into 1 यानी 3 प्लस 7। अब 5 plus 7 यानी होता है हमारा 12। 12 में से 3 गए तो ऑब्वियसली वी गेट द 9 एज आंसर। ऐसे ही हमें सिंपल सी प्रैक्टिस करते रहने। अब ये चीज हो गई। अब यहाँ पे दूसरा भी यहाँ पे आपको सॉल्व करवाता हूँ कि सपोज एक अंडर रूट वाला एक पोलिनोमियल से कभी दिक्कत इसमें भी आती है, तो ये दिक्कत ना है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोज हम ऐसा यूज कर रहे हैं। सेकंड वन q ऑफ x यहाँ पे दिया गया और q ऑफ x की वैल्यू क्या रखनी है, 2 रखनी है। तो 3y क्यूब यानी 2 का क्यूब। अब जहां पे भी मुझे y दिख रहा है वहां पे क्या रखेंगे, 2 ही रखेंगे। 3 2 स्क्वायर 4 2 प्लस अंडर रूट 11।
अब 2 का क्यूब क्या होगा? ऑब्वियसली 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 4, 4 2 जार, यहां पे ऐसा रखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 4, 4 2 जार 8, so we have to get here 8, 8 into 3 24 minus 4 into 2 8 plus under root 11 as it is. Now 24 में से 8 गया तो कितना बचता है? 24 में से 8 तो ऑब्वियसली 16 बचता है। क्या बचता है? 16, यस 16 is that plus 11. So if we put it like this way, this is the answer. अब उसको आगे कुछ करना नहीं। अब इसमें ऐसा आपको लगता होगा सर ये तो सब इजी है, ये सब चीज करने की क्या जरूरत, बट ये चीज करने से ही आपका बेस बनता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये सब चीज में से हम कैसे आगे निकलते हैं। देखो अब ये हमें क्या करना है, ये पोजीशन तो समझ में आ गई सबको। अब हमें कुछ डिफरेंटली यूज करना है। कैसे यूज करना है? डिफरेंट। कैसे? कि सपोज p of x 5x square ऐसा कोई भी इक्वेशन हमारे पास नहीं है। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स में और कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 33 को कंसीडर करते हैं हम पहले। तो 33 पेज नंबर पे एक एग्जांपल्स गिवन है, दैट इज चेक वेदर, ऐसा क्वेश्चंस लिखा है, चेक वेदर -2 and +2, -2 and +2 are zeros of the polynomial x + 2। अब हमें क्या करना है? एक पॉलिनोमियल दिया गया है, उसमें हमें ये चेक करना है। दिस इज वन एग्जांपल्स गिवन दैट इज आल्सो इन द योर टेक्स्ट बुक आल्सो, बट दिस काइंड्स ऑफ द कैटेगरीज, ये सभी कैटेगरीज को मैं मेंशन कर रहा हूं कि किसी भी कैटेगरी का क्वेश्चंस आपके सामने आए तो यू कांट बी हेजिटेबल। ओके, सो चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। हमें ये करना है कि ये पॉलिनोमियल्स है, तो हम एक नाम दे देते हैं पॉलिनोमियल्स का, p of x = x + 2। ओके, तो ये पॉलिनोमियल्स अभी हमारे पास क्या है? x + 2 है। हमें क्या चेक करना है कि -2 and 2 ये दोनों इस पॉलिनोमियल्स के जीरो है कि नहीं। मतलब जीरो है का मतलब ऐसा हुआ ना कि ये जो p of x की वैल्यू, ये वैल्यू रखने से जीरो आ सकती है। समझ में आ रहा? फिर से मैं बोल रहा हूं कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब ही ऐसा है कि वॉट एवर द वैल्यू बी गिवन। अभी तक हम क्या कर रहे थे? जो भी वैल्यू रख रहे थे उससे कोई एक वैल्यू आंसर आ रही थी। यदि वो आंसर जीरो आया तो वॉट एवर द गिवन वैल्यू टू दैट पॉलिनोमियल्स, इट इज ऑब्वियसली कंसिडर्ड एज द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल्स। ये वैल्यू उस पॉलिनोमियल्स की जीरो वैल्यू कंसीडर कर सकते। समझ में आ रहा है? मतलब it is also considered like it is one of the zeros of that polynomials। तो हमें तो यहाँ पे चेक ही करना है कि -2 and 2, यदि चेक करो कि ये -2 और 2 दोनों इस पॉलिनोमियल्स के जीरो है या नहीं, तो जस्ट वी हैव टू चेक। पहले हम -2 को रखते हैं, p -2 +2, x की जगह मैंने क्या रखा? -2 रखा, तो आंसर विल बी गेट -2 + 2 क्या हो जाएगा? 0 आया। 0, यस। सो -2 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स x + 2। दूसरी चीज मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि यदि मैंने 2 रखा, p of 2 = x + 2। ओके, अब यहां पे 2 रख रहा हूं, 2 + 2 हुआ यानी ये 4 हुआ। So p - 2 is a zero of this polynomials, but p of 2 is not a zero of this polynomial। समझ में आ रहा है? यहाँ का आंसर तो 4 है,
यदि ये 0 आता तो ये 0, ये -2 है, इसका एक पॉलिनोमियल्स का 0 है, इस वैल्यू रखने से पॉलिनोमियल्स 0 हो सकती है, ये रखने से ये पॉलिनोमियल्स 0 नहीं हो सकता। समझ में आया? तो ऐसे सम्स आपको क्लियर करने हैं। ऐसी कैटेगरी के कितने सारे सम हम सीख सकते हैं। ओके, सो जस्ट वी हैव टू फोकस दैट व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर। ओके, सो और एक चीज कैटेगरी की एक बात आपको बता दूं कि दिस इज ऑल्सो हैविंग सच काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस विल आस्क लाइक फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स p of x is equal to 2x plus 1। अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, बट आपको ऐसा बोला गया है फाइंड जीरो। देखो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तीसरी टाइप की मैं आज डिस्कस कर रहा हूं, इसमें तीसरा टाइप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, बट आपको समझने में फ्यूअर सेकंड्स चाहिए, थोड़ी सेकंड्स आपको समझने में चाहिए, बाकी सब इजी। जैसे कि समझ लो कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p of x is equal to 2x plus 1। अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, बट एक चीज है कि p of x is equal to 0 है, मतलब हमें 0 फाइंड करना है। तो p of x तो हमें गिवन है, that is 2x plus 1 is equal to 0। ऐसा हो गया, क्योंकि p of x के 0 हमें फाइंड करना है, तो इस ये पूरा इक्वेशन का इक्वल जो होता है वो तो 0 ही है, तो why we should not use p of x is equal to 0। तो जैसे मैंने रख दिया p of x is equal to 0, तो p of x हमारा क्या है 2x plus 1 is equal to 0 हुआ। अब 1 को उस साइड ले जाते हैं, 2x is equal to -1 हुआ, then x is equal to -1। ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, आगे जाएगा डिवीजन, -1/2 हुआ। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिली -1/2। अब इसको वेरीफाई कर सकते हैं हमें ऐसा नहीं कि x की वैल्यू आ गई -1, तो हमने सिर्फ उसको सब्जेक्ट बना दिया, p of x is equal to 0 एज्यूम करके पूरी x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, x is equal to -1/2 हुआ। अब -1/2 जैसे ही हुआ ऑटोमेटिकली हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करना है कि हम x की जगह -1/2 रखें, क्योंकि ये यदि -1/2 इसमें रखने से 0 आ जाता है, तो -1/2 इज द zeros of this polynomials। वो उल्टा जैसे हमने वो सेकंड देखी थी, वैसे ही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। अब क्या करना है, -1/2 हम वही इक्वेशन में रखते हैं 2, -1/2 + 1। अब आप देखो ये 2 तो क्रॉस है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये कट हो सकता है, तो यहां बचा -1 + 1। -1 + 1 क्या हो जाता है 0 हुआ। यानी इट्स इंटरेस्टिंग, -1/2 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ 2x plus 1। यदि कुछ नहीं दिया जाता तो 2x plus 1 को इज इक्वल टू 0 करके आप x को सब्जेक्ट बना दो, और जो वैल्यू है उसको वेरीफाई कर दो। वेरीफाई करने से भी वो 0 आ जाता है, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। इज इट क्लियर? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इजी है, बट माइंड में ज्यादा लंबे समय तक रहनी चाहिए। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की ओर। अब ये तीनों कैटेगरीज को मैंने आपको समझा दिया। ये तीनों कैटेगरीज बारी बारी से आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो, जब भी आपको देखना है ये वीडियो, अब आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो। ओके, अब एक्सरसाइज 2.1 में आए तो उसमें पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। ऐसा पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल आपको दिया गया है?
आप भी अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो कौन सा भी क्वेश्चन यहाँ पे यूज कर रहा हूं। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ओके, अब उसको डिफरेंट वैल्यू एट कौन कौन सी वैल्यू पे दिया गया है। एट फर्स्ट x इज इक्वल टू 0, सेकंड x इज इक्वल टू -1 एंड थर्ड that is given as x is equal to 2। अब ये तो सिंपल है, इतने सारे हमने एग्जांपल अभी किए हैं तो ये तो बहुत इजी लगेगा आपको। सिर्फ आपको क्या करना, p ऑफ x पहला सॉल्यूशन हम फाइंड कर रहे हैं। p ऑफ x is equal to 5x minus 4x square plus 3। कितनी स्पीड से मैं कर रहा हूं देखो, आपको भी इतनी स्पीड इसमें मेंटेन करनी है। p पहले हम 0 ले रहे हैं, x is equal to 0, जहां पे भी x दिखाई दे वहां पे 0 रख दो। 5 0 0, ये 0 ही होगा प्लस 3, यानी आपका आंसर होता है 3। ये कितनी स्पीड से हुआ, 5 0 0 4 0। यहाँ पे फिर कैलकुलेशंस में जाना ही नहीं है क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होने ही वाला है, तो आप उसमें टाइम वेस्ट ही नहीं करो। -4 0 प्लस 3। ओके, प्लस 3 इज द आंसर। ऐसे ही 1 को हम रख रहे हैं, p इज इक्वल टू -1, 5 -1 4 -1 स्क्वायर प्लस 3। 5 -5 तो -1 into 5 कितना होता है, -5 -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, प्लस 1 को माइनस से सब कंसीडर करो यानी -4 ही होगा प्लस 3। -5 -4 that is having -9 plus 3, so we get -6, so that is also having x -1। similarly we are using x is equal to 2। ये तो आप कर ही सकते हो। तो मेरा कहना ये था कि ये जो चीज है बड़ी इजी है, यदि आप उसके ऊपर बड़ा प्रैक्टिस करेंगे, कुछ भी कोई भी पॉलिनोमियल्स आप ले लेते हैं और उसी पॉलिनोमियल्स के ऊपर आप प्रैक्टिस करते रहे, then it will get the great confidence in your mind। I'm damn sure यदि आप इसी सिंपल सी बात पे एग्री होते हो और आप वही चीज को बारी बारी से रोटेट करेंगे, और मैं भी आपको बताता हूं कि मैथमेटिक्स ऐसा चीज है कि जब भी आप मैथ्स करते हो, डोंट बी यूज सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन। आप एक्सरसाइज तो कर ही लेते हो बेटा, बट मेन क्वेश्चन इज दैट it never ask repeated that kind of the question कि यही क्वेश्चंस यही नंबर के साथ आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, in the beginning of any class we will provide you in the test that same from the exercise, but if we want to modify, उसको हम modify करते हैं तो वही मेथड का सम कोई भी नंबर बदल के आ सकता है। यानी माइंड में ऐसा कभी मत रखो कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से ही हमारा मैथमेटिक्स पावरफुल होता है। हाँ, इट्स नीड नॉट, आपको प्रैक्टिस करने के लिए सब होना ही चाहिए। प्रैक्टिस करने के लिए देयर आर नंबर ऑफ रेफरेंस बुक इज आल्सो बी अवेलेबल। यू कैन आल्सो सॉल्व आउट R.D. Sharma, R.S. Agarwal, both of the reference is very very useful for you। It will get the good marks in 10th standard also, because in these books, in the reference books, it gives into the levels, so you can use level wise practice। So I recommend this kinds of the things, and don't be used same exercise questions in your practice। You have to gone through out bit of this exercise। इस एक्सरसाइज के एक लेवल और भी है जहां पे भी हमें पहुंचना है, तो ये पहुंचने के लिए बेस से कर रहे हैं, किया हुआ चीज ही साथ में आती है। कभी एक्सरसाइज के ऊपर हम फोकस करके चले तो नहीं आते, तो माइंड में से निकाल देना कि कभी भी हमारे क्वेश्चंस जो है वही क्वेश्चंस ही हमारे टेस्ट में आ सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट इट। सो टुडे आई कंक्लूड with this talk, and I am using this exercise 2.1. First question I solved here. You have to solve tomorrow question number 2 and question number 3 also, if you have to
knowing about that. So today's homework, HW exercise 2.2, सॉरी ये 2.2 चल रहा है हमारा। 2.2 के क्वेश्चंस नंबर 1 से 2, ये दोनों क्वेश्चंस फुल, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 विथ ऑल द रोमन्स। इसमें जो भी रोमन है वो रोमन भी करने हैं, ऐसा नहीं करना कि फर्स्ट 2 रोमन्स नहीं दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के हर एक रोमन्स। एंड इफ यू हैव टू गेट द कॉन्फिडेंस देन यू हैव टू कवर द क्वेश्चन नंबर 3, तभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। इसमें यदि कॉन्फिडेंस है तो 3 में जाना है, वरना हम वहां से ही स्टार्ट करें। इज इट ओके? तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 and it will send it up to the 130 p. Okay, 130 तक आपको भेज ही देना है। Thank you very much for being with us. I am very happy and I hope so that everyone understood well this concept. Thank you very much. We will meet very soon. Thank you very much.